Grads International School, Greater Noida is a school with difference. It is an amazing confluence of modern curriculum, of an international standards with values and services that are the core of humanity. Its core values are quality, universal education, keeping balance between science, religion, unity, and world peace. These values are nurtured in every student through daily studies, services towards the society. Grads International, under its school's social responsibility, takes up different Saath Saath nation building programs, collaborating with parents, neighbors, nearby villages, local administrations, welfare organizations, and NGOs. Time to time, it organizes different infotainment programs, safety workshops, and awareness campaigns for students, parents, neighboring societies, and villages. During the Baha'i festival, Ayam Ha, our children donate stationery, toys, food items to the Surajpur Apna school. Our children also visit gurudwaras, churches, temples to render their services. At GRADS, safety comes first. All the safety drills are conducted time to time with the experts. GRAD's priority is peace and well-being of mankind. In continuation with this mission, we have started a series of workshops to throw light on the importance of early childhood education. In the last month, a principal ma'am herself conducted a Chupi Todo campaign to spread awareness on child safety and how to ensure that. Two more workshops will be conducted in the coming future about art integration and physical education integration. Today, we have with us an leading dietitian and nutritionist, Mrs. Jaya Pendekar. Thank you, ma'am, for being with us. But before telling you all more about Jayashree ma'am, I would request Ms. Yogita Singhal, teacher Grads International School, to tell you about what steps are being taken by grads to inculcate nutrition or good food habits in our students in their daily routines. Yogita ma'am. Yes, ma'am. Thank you, Pragati, ma'am. Sudarshan sir, please share slides. Yeah, ma'am. Yes, ma'am, you can continue. Good afternoon, everyone. I'm Yogita Singhal, mother teacher of grade 1. As we all know that right nutrition required at every stage of life. A balanced diet and right nutrition is the secret of a healthy life. Nutrition, health, and education are three essential pillars of development, and we at Grads International School always focus on that as our core curriculum. Next slide, please. Schools are the natural development zone for nutrition education. They are one of the main social contexts in which lifestyles are developed. Thus, the school is an important part of a network of influences which shape eating pattern and attitudes. So we do our part of this responsibility with utmost sincerity. Let's have a look at what we do at Grads International School. Next slide, please, sir.
यस, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चों को लंच एंड फ्रूट ब्रेक के लिए अलग अलग 2 ब्रेक देते हैं, so that all students understand the value of fruits and can have their meals properly. We teachers sit and share our food with kids to give them a healthy environment. We have an additional fruit break till class 5th to make eating fruits a regular habit. From class 6 onwards, fruit has to be compulsory item in the lunch box, which is monitored by teachers. हम हमेशा बच्चों और पेरेंट्स को हेल्दी फूड एंड वैरायटी इन फूड के लिए सजेस्ट करते हैं, ताकि बच्चों को हेल्दी फूड भी मिले और उसमें वैरायटी भी रहे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। In our school, for senior classes, we have gourmet club, where our teachers or sometimes we call nutrition specialists to give them correct knowledge about food and to suggest healthy and tasty recipes. We have a tuck shop in our school. Sometimes students are not able to bring food from home. In that situation, we provide them healthy packed food like energy bars, oat biscuits, ready to eat corn, cakes, aam panna, badam, milkshake, etc. In grades, so next slide please. In grades, we conduct many activities to encourage healthy food habits. So please next slide. Yes, thank you. In grades, we conduct many activities to encourage healthy food habits. Like we have fruit party, salad making activity, and sometimes we conduct mother and child cooking activity. We conduct workshop for students as well as for mothers also. Nowadays, we know that we cannot be physically students or our little kids our intentions and develop them up the best possible way. We are trying to give them that healthy environment which they were getting during pre-COVID school days. Slide please, sir. Before this one. Is it okay, ma'am? Yes. Thank you. Yes, yes. We organize all our activities even online time to time for students. During online classes, we provide them healthy recipes. We also try to make during online classes for their better understanding. In these activities, not only students enjoy but their mothers also enjoy. Next slide, please, sir. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. As you can see in these activities, not only students enjoy but their mothers also enjoy. We teachers also make videos of healthy recipes at our home and provide to the mothers so that students get healthy environment. Now at the end, sir, last one please. Is it?
can't see. Yes, this one and next one. Yes. Now at the end, as you can see on the screen, we have two very healthy recipes full of nutrition. These recipes are not at all time consuming and easy to make. First one is Bajra Til Ki Meethi Tikki made by our very talented teacher Ritu ma'am, and second one Moong Dal Stuffed Chila is made by me. So I just want to share full recipe of this healthy and delicious recipe for you to try. If you want to try it, please try it. I am just आप सबको पता है कि मूंग दाल चीला कैसे बनाया जाता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बट मैं आपको फिर भी थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि हम लोग जो बनाते हैं, जो मैंने बनाया है उसमें थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट दिया है। इसलिए मैंने उसमें ट्विस्ट दिया है क्योंकि बच्चों को कॉर्न भी बहुत पसंद होते हैं। मैंने इसमें कॉर्न के लिए भी स्पेस डाला है और इसको मैंने कॉर्न के साथ ही बनाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो मूंग दाल है, धुली हुई मूंग दाल होती है, उसको यूज करेंगे और उसको हम करीब 1 आवर के लिए भिगो के रख देंगे। उसके बाद उसमें थोड़ा सा उसमें हम लोग ग्रीन चिली, हरी मिर्च के साथ और थोड़ा सा अदरक डालकर हम इसको पीस सकते हैं। इसको हमने ग्राइंड कर लिया और इसको थोड़ी देर, आधा घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग एंड स्टफिंग बनाने के लिए मैंने इसमें क्योंकि मेरा बेटा है और वो बहुत सारे वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करता है, बट इसको हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसमें कैरेट, पीस एंड थोड़े से कॉर्न, क्योंकि उसको कॉर्न बहुत पसंद है और मोस्टली सारे बच्चों को कॉर्न बहुत पसंद होते हैं, तो मैंने इसमें कॉर्न को भी डाला है। उसको थोड़ा सा मैंने सॉटे किया है एंड उसके बाद मैंने इसमें पनीर डाल दिया है। फिर हम लोग इस जो हमारा दाल का बैटर है उसको फैलाया, जो हमारा पैन है उस पर फैलाया है और उसमें इस स्टफिंग को यूज किया है। बहुत ही इजी रेसिपी है एंड एवरी मदर, एवरी पेरेंट कैन यूज दिस। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। Over to you, Pragati ma'am. Thank you so much, Yogita ma'am, for your yummy recipe. Thank you again. Now, I would like to call upon Ms. Jayashree ma'am. Before she starts, I would like to give her short introduction to all of you. Jayashree ma'am is leading dietitian nutritionist who has over 50 years of experience in the field of education and health services. She is the HOD and superintendent at Central India Institute of Medical Science and Hospital, Nagpur, Maharashtra. She has been a teacher at Air Force School, Delhi. After that, she switched over to health services. She has conducted various workshops on diet and nutrition for clients like Tata, Maharashtra Government, Indian Institute of Coal Management, hospitals, Bharatiya Vidya Bhavan, London, and many other schools, colleges, and slums. She has delivered regular lectures in science programs organized by All India Radio and Doordarshan. She has published many papers on malnutrition among tribals of India. She has received many national and international awards. She has been the editor of magazines like Yogaraj and Matru Seva. She has also authored books on diet and nutrition in her mother tongue Marathi as well as in Hindi and English. You can avail her book Swasth like Swasth Ahar and Shishu va Mata ka Poshan Tatha Purk Ahar on Amazon. We feel delighted to have Jayashree ma'am amongst us today to enlighten all the participants, principal ma'am, teachers, parents and students. We welcome you, Dr. Jayashree Pendekar ma'am.
Hello, thank you so much. I would have loved to talk instead of all my this data. I could have used that time for the speech, you know. I have heard what I mean, some slides were shown. I'm so happy about it that you are giving a correct importance to nutrition, because unless children eat rightly, they cannot grow properly, and even if their intelligence is affected. So, what is the most important thing in our life is. Can you see Yes, me? ma'am, we can. Yes, Hello? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very nice. You're looking very nice. In our life, the most important thing is our health, isn't it? And of course, our country, our character. So unless our health is good, we cannot do anything in life. And a noble work you people are doing, that growing children who are going to be our future of India. So we want them to be healthy and wise also, and very brilliant also, and shining in their life in certain different areas. In fact, for health means all round development and physical, social, mental, and spiritual development of a child, even spiritual. So of course, you are looking after the culture and the other things also in your school. Before certain recipes which you have shown, I would like to make certain comments on that before we proceed further. Because as I said, हम लोग जो चीजें खाते हैं, हम लोग अनाज खाते हैं, हम लोग दालें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, दूध दही छाछ खाते हैं और तेल और घी खाते हैं. यही 6 चीजें हम खाते हैं. मांसाहार हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा नहीं है. मांसाहार की जगह केवल अंडे और मछली, ये चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायी है. तो ये जो 6 चीजें हमने कही है, ये 6 चीजें हमें प्रतिदिन हमारे आहार में मौजूद होना जरूरी है. बिकॉज उसमें से जितने भी पोषक तत्व है, जो पोषक तत्व है आजकल बच्चों को सिखाया जाता है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, तो ऐसे सारे पकड़ के 40 पोषक तत्व है, और वो सभी हमारे शरीर में एक टीम जैसा काम करते हैं. तो सभी की जरूरत है. आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हम खाली चावल ही खाएंगे, रोटी खाएंगे, ब्रेड ही खाएंगे, सब्जी नहीं खाएंगे. ऐसा कुछ नहीं कर सकते. ये सभी चीजें जरूरी है शरीर की सही बढ़ोतरी के लिए और बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए. शरीर में जो आपकी मांसपेशी है, बोन्स है, उनकी डेवलपमेंट के लिए सभी चीजें जरूरी है. आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम बस आज बर्गर खा के रहेंगे. इससे क्या होता है, हमें पेट तो भर जाता है, हमें थोड़ी से कैलोरीज तो मिलती है, लेकिन जो कैलोरीज मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, वो मतलब बहुत देर तक ठहरने वाली नहीं होती है. और शरीर की बढ़ोतरी भी ठीक ढंग से नहीं होती है. हमारे शरीर के अंदर कितने सारे अंदर में एलिमेंट्स हैं ना. हम हार्ट है, हमारा हृदय, हमारा हार्ट है, हमारा लिवर है, इंटेस्टाइन है, किडनीज है, ब्रेन है. तो हर चीज के लिए सही खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है. और सबसे जरूरी है कि हमारा खून है, हमारी मांसपेशी है. तो ये खून यदि बराबर दौड़ेगा शरीर में, मांसपेशियां अच्छी ढंग से डेवलप होंगी, तभी हम अच्छे तरह से हमारी बढ़ोतरी होगी. और बच्चों की बढ़ोतरी इस उम्र में होती है, और इसीलिए उनको सबसे अधिक खान पान के विषय में उनके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है. क्योंकि नहीं तो क्या होता है, बार बार बीमार पड़ते हैं बच्चे. और तो हम आहार ऐसा ले कि जिसमें ये सभी घटक हो, अनाज हो, दालें हो, सभी होना चाहिए. सब्जी हो, दूध दही छाछ हो, या तेल घी हो, और फल भी हो.
जैसा फल कंपलसरी किया है, बहुत अच्छी बात है, तो फल भी होना बहुत 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 जरूरी है। अब ये सब चीजें बचपन में ग्रोथ पीरियड में अधिक मात्रा में बच्चों को लगती है, और बच्चों को यही होता है कि नहीं हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, और फिर बच्चे खाते हैं ब्रेड, बिस्किट, चॉकलेट, टॉफी, उससे पेट भरते हैं। पेट तो भर जाता है, लेकिन वो सही चीज नहीं है हमारी बढ़ोतरी के लिए। आप हमारी देश का, बच्चे हमारी देश का भविष्य है। आप में से ही बहुत बहुत बड़े और अच्छे लोग होने वाले हैं, अच्छे साइंटिस्ट होंगे, अच्छे नेता होंगे। तो आपको यदि अच्छे कुछ बनना है तो अभी से सही, जो हमारा जो पेट्रोल है, हमारी ये गाड़ी कैसे चलेगी, हमारी पेट्रोल से चलेगी ना, तो हमारा जो पेट्रोल है, मतलब हमारा जो खान पान है, वो सही होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये मनुष्य एक निसर्ग का अंश है। मनुष्य, पशु पक्षी और वनस्पति, हम तीनों लिविंग है ना, हम तीनों इस वातावरण में है, इस एटमॉस्फेयर में। तीनों जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे के साथ हम रहते हैं। तो हमने ऐसी चीज खानी चाहिए जो नेचर दे रहा है, हमें एनवायरमेंट दे रहा है, मशीन दे रहा है, वो नहीं खाना है। हाँ, हमने जो नैसर्गिक रूप में हमें जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं वो हमने खाने हैं। तो हम क्या करते हैं, जो सुपरमार्केट में जो सब वो पैकेट्स में जो चीजें मिलती है वही खाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक तो वो बासी चीजें रहती है, पता नहीं मशीन में कब बने हैं। हम ताजा है, हम जिंदा है, तो हमारे लिए ताजा अनाज, ताजी सब्जियां, ताजे फल वही आवश्यक है। ये बच्चों ने समझना चाहिए। बहुत जरूरी है कि बच्चों को समझे कि हमारा खान पान सही हो। और उसके लिए क्या है, एक तो हमारी जो आदतें हैं वो अच्छी होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए। बहुत देर से उठते हैं, रात को गेम्स खेलते रहते हैं, तो देर से उठना सबसे गलत बात है। कुछ भी हो, सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी ही है। हाँ, हम कहते हैं कि पहले सूरज की किरणों से हमको नहाना है, सूरज की किरणें देखनी है। अभी दिल्ली में तो इतना फॉग है, रोज नहीं दिखते हैं ना सूरज की किरणें, लेकिन फिर भी सुबह तो सूरज तो निकलता ही है। तो हमने पहले सूरज की किरणें झेलनी है, सूरज की किरणों से नहाना है, उसके बाद पसीने से नहाना है, और फिर पानी से नहाना है। सुबह का नहाना भी आजकल बंद हो गया है सर्दी के कारण, लेकिन सुबह जल्दी उठ के पूरा सब मॉर्निंग ड्यूटीज करके ही स्कूल में जाना है। ये अच्छी आदतें हमने लगानी है, और सुबह थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता लेके ही जाना है। घर से बाहर कभी भी खाली पेट नहीं निकलना। अब जो कई स्कूल्स है, कॉलेज मैंने ऐसे देखे हुए हैं कि जहाँ लड़कियां सुबह यदि प्रेयर होती है तो प्रेयर में चक्कर आके गिरती है। तो क्योंकि सुबह का नाश्ता नहीं लेते, रात में ढंग से नहीं खाते हैं, और बढ़ोतरी की उम्र में बच्चों को, लड़कियों को अधिक खान पान की आवश्यकता होती है, ये आप लोग नहीं जानते हो। तो सुबह का जैसे नाश्ता जब मैं बोलती हूँ, तो सुबह का नाश्ता कौन सा अच्छा है, सबसे बढ़िया है कि एक अंडा खा के निकले, अंडा, थोड़ा दूध और एक हाथ केला, ऐसा हो सकता है। जो वेजिटेरियन है उन्होंने हल्का सा दूध, केला और जो खजूर, बादाम, अखरोट, ऐसे चीजें भी खा के निकल सकते हैं। फिर जो है, जैसा अभी आपने बताया कि चीला जो बनाया, मूंग के दाल, अंकुरित मूंग के दाल का चीला बहुत अच्छा है, लेकिन हमेशा दाल और अनाज, इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपने उसमें अनाज नहीं डाला है, बेसन डाला है, तो उसमें या तो चावल का आटा डालिए, या तो चावल उसके साथ पीस लीजिए थोड़ा सा ही, तो फिर वो संपूर्ण नाश्ता होगा। जब भी हम कुछ भी खाते हैं, एवरी टाइम इट शुड बी ए फुल कंप्लीट मील। मील मीन्स पूरा भोजन नहीं होना चाहिए, बट इट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स। अब मैं उदाहरण जैसे यही देती हूँ कि चीला यदि आप बना रहे हैं तो अंकुरित अनाज सबसे बढ़िया होता है। अंकुरित मूंग, मोट, ये जो है ना, अंकुर निकलने के बाद उसमें सबसे अधिक पौष्टिक तत्व आते हैं,
तो उसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला के थोड़ी देर रख दें, और बाकी जो भी आपको डालना है, अदरक है, ये है, वो सब डाल के फिर उसका आप चीला डोसा बना सकते हैं। और उसके बीच में ऐसा स्टफिंग कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी बात है कि एक तो पनीर को घिस के, फिर गाजर को घिस के, और जो भी आपको मटर ऐसा थोड़ा क्रश करके वो बीच में डाल के, वो बहुत अच्छा ये कंप्लीट डिश होती है। दैट्स अ वेरी गुड डिश, ये डेफिनेटली मैं कहें। तो जैसा अभी यदि बच्चे दलिया तो नहीं खाते हैं, लेकिन जो बैम्बिनो के ये रहता है ना सेवई, उसके भी उपमा जैसे आप बना सकते हो। और उसमें जब ऐसे कुछ उपमा वगैरह बनाना है तो उसमें अवश्य पनीर डालिए, अवश्य उसमें मूंगफली डालिए, और उसमें भरपूर सब्जियां डालिए। तो फिर पता नहीं चलता है बच्चों को, हर बच्चे को सब्जी के ऊपर नाराजगी रहती है। तो वो सब्जी हम कैसे खिलाएं, वो हमारा करतूत है। अब जैसे अपन पराठे खिला सकते हैं। सुबह के नाश्ते में पराठे हो तो उसमें आटे में बेसन अवश्य डालें। फिर आटे में ही जो सब्जी है ऐसे गूंद सकते हैं। कभी मेथी है तो मेथी की सब्जी बना के उसमें आटा गूंद सकते हैं, या और भी जो सब्जियां हैं वो भी थोड़ा गली हुई सब्जियां हो तो उसी में आटा गूंद सकते हैं, और वो पराठा भी दे सकते हैं। कई बार हम जो दाल बनाते हैं, मिक्स दाल या कुछ भी होती है, तो उसमें भी आटा गूंद के, फिर उसमें बेसन डालने की आवश्यकता नहीं, उसी में आटा गूंद के आप ये दे सकते हो, और उसका रोल कर सकते हो। रोल में ये ऐसा स्टफिंग, पनीर खिलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन चीज, हाँ, और चीज स्प्रेड और रेडीमेड बटर, इससे अवॉइड करिए। जितने भी रेडीमेड स्टफ है, दे आर ऑल हैविंग प्रिजर्वेटिव। वो सब बासी चीजें होती है, और उसको शेल्फ लाइफ ज्यादा होने के लिए उसमें ये सब चीजें डाली जाती हैं। तो ताजी चीजें बच्चों को खिलाइए ज्यादा से ज्यादा। जैसे अभी नूडल्स, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ नूडल्स, आई नो। तो ट्राई टू बाय आटा नूडल्स, इजंट इट? तो आटा नूडल्स लेने के बाद उसमें भी खूब सब्जियां डालिए बारीक करके, तो पता नहीं लगता। उसमें शुरू से आप अंडा भी डाल सकते हो, जो अंडे खाते हैं। और सबसे बढ़िया है कि उसमें पनीर भी डालना है, उसमें पनीर अवश्य डालें। तो फिर, या कोई लोग ऐसे मूंग की बड़ी या ऐसे कुछ बड़ी वगैरह बनाते हैं, वो भी उसमें डाल के दे सकते हैं। इस ढंग से हम उसी को परिपूर्ण कर सकते हैं, बराबर है। अब ये जो बर्गर या ये जो बनाते हैं, तो आटा ब्रेड लेना चाहिए, आटा ब्रेड। और उसमें जो हम बटर लगाते हैं, तो इट इज बेटर इफ घर का मक्खन हो तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये रेडीमेड बटर में भी प्रिजर्वेटिव रहते हैं, कलर्स रहते हैं। तो एज फार एज पॉसिबल इट इज बेटर, एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट इट। और जितने हम प्रिजर्वेटिव, जितने हम ये केमिकल्स और ये जितना खाएंगे, उसी कारण कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है। और बच्चों को उनकी बढ़ोतरी के उम्र में सबसे ज्यादा जरूरत है प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स कैसे मिले उनको? एक तो उनका वजन सही होना चाहिए, सबसे पहले वो देखना है आपने कि वजन, सपोज बच्चा समझ लीजिए 5 या 6 साल का है, एक छोटा सा ये फॉर्मूला है। यदि 6 साल का बच्चा है तो उसमें 6 + 3 करिए, 9 हो गए, और उसको मल्टीप्लाई बाय 2, तो 18। तो 6 साल के बच्चे का वजन 18 किलो होना चाहिए। दिस इज अराउंड 18, कम ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा 1-2 किलो कम ज्यादा है। वर्स्ट इज चाइल्डहुड ओबेसिटी। आजकल ये सब जो खाएंगे ना, रेडीमेड खाएंगे, होटल का खाएंगे, इसी के कारण चाइल्ड, और एक्टिविटी कुछ नहीं, खेल कुछ नहीं। एक्चुअली जो स्कूल में जो 2 छुट्टियां हैं, शॉर्ट ब्रेक और लॉन्ग ब्रेक, तो मैं तो ये समझती हूँ कि एक ब्रेक में बच्चों ने खेलना चाहिए। तो ये जो ओबेसिटी है, दिस इज वेरी बैड, क्योंकि चाइल्डहुड ओबेसिटी यदि वो कंटिन्यू होती है तो बाद में भी कंटिन्यू होती है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव। चाइल्डहुड में ओबेसिटी बहुत, एक एडल्टहुड में ओबेसिटी आई तो व्यायाम और डाइट करके आप उसको हटा सकते हो। चाइल्डहुड ओबेसिटी इज वेरी 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 बैड। और ओबेसिटी के कारण तो कितनी सारी बीमारियां हैं, लेकिन कैंसर इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स, कि कैंसर भी होता है ओबेसिटी के कारण। और ये ओबेसिटी इतना बच्चों को खिला खिला के, कई मदर्स रहती है खूब खिलाती है बच्चों को, नहीं उसको एनर्जी चाहिए,
एक तो बच्चे ने खुद मांगना चाहिए कि हाँ मुझे भूख लगी है, और जितना उनको चॉकलेट वगैरह देंगे तो क्या होता है, उनके जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो टेस्ट बर्ड्स देन दे डोंट एक्सेप्ट एनी अदर टेस्ट, दे वांट ओनली चॉकलेट, दे वांट ओनली मिठाई चीज, मीठी चीज ही खानी है और कुछ नहीं खाना है। या जो रेडीमेड लेंगे, लेज है, पॉपकॉर्न्स जो इसमें हम माइक्रोवेव में करते हैं ऐसे जिसमें भी बटर है, तो इससे उनकी टेस्ट ही नष्ट हो जाती है। तो दे डोंट हैव टेस्ट फॉर एनी अदर फूड देन, सो दे मस्ट बी गिवन ऑल टाइप ऑफ फूड, थोड़ा तीखा, थोड़ा मीठा, और मीठा इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, नॉट शुगर। ट्राई नॉट टू गिव देम शुगर एट ऑल, शुगर की कोई जरूरत नहीं है। अभी इन दिनों में हम तिल गुड़, उसका तिल और गुड़ का ये खाते हैं, तो वो गुड़ खाना ठीक है। तो यही है कि उनको मीठा दो, थोड़ा खजूर खा सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, नेचुरल स्वीट्स अवश्य खाए। इन दिनों में गन्ना भी खाए। सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चों के दांत, क्योंकि दांत ये ऐसी एक चीज है कि अभी जो आते हैं बचपन पहले गिर जाते हैं और 7-8 साल में दूसरे नए आते हैं। ये दांत हमको जन्म भर संभालने होते हैं, वो बार बार हमें नहीं मिलते हैं। तो दांतों की निगाह, दांतों का रक्षण कैसे करें, और इसके लिए उनको ऐसी चीजें दें कि वो दांत को खराब ना करे। जो भी एसिडिक चीजें हैं, जो भी जैसे ब्रेड है, मैदे की चीजें हैं, ये सब एसिड प्रोड्यूसिंग है, और एसिडिक हमारे ये हो जाती है सलाइवा, और उसके कारण दांतों पर असर होता है। और इसलिए मतलब मैदा, ब्रेड, बिस्किट, इसमें कोई भी विटामिन नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है, इट हैज ओनली एम्प्टी कैलोरीज। तो इसीलिए उससे एक तो एसिडिटी प्रोड्यूसिंग भी है, तो बच्चों को ये ना दे। और जब भी कुछ खाते हैं उसके बाद दे मस्ट वॉश देयर माउथ, दे मस्ट क्लीन देयर माउथ। ये हैबिट लगाइए, क्योंकि इन दांतों को हमको जन्म भर संभालना है, ये उनको बताना जरूरी है कि दांतों, और जब दांत सही होंगे तभी खान पान सही होगा। बच्चे कई बार उनको ऐसी चीजें चाहिए कि मुंह में रखें, वो पिघल जाए और वो गुटक जाए। तो ऐसे खाद्य पदार्थ उनको दो कि उसे चबाना पड़े और भरपूर सलाइवेशन हो, बिकॉज रियल डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ। सलाइवा यदि बराबर नहीं है, सलाइवेशन नहीं होता है, और सलाइवेशन होगा जब वो चबाएंगे, चबाते ही नहीं है, दे जस्ट वांट टू गल्प द होल थिंग, एंड दे गल्प इट अलोंग विद द वाटर आल्सो। समटाइम्स सॉफ्ट ड्रिंक्स आल्सो, दैट्स अ फैशन कि उसके साथ सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं। दिस ऑल रॉन्ग हैबिट्स एंड इट डजंट हैव एनी न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो ये हमको सिखाना है कि हम अपने दांतों को कैसे प्रिजर्व करें, और इसलिए फाइबर रफेज आहार में होना आवश्यक है। और ये फाइबर रफेज जैसे सब्जियों से, फलों से, जहां तक हो सके किसी के भी छिलके नहीं उतारना है। भरपूर सब्जियां अपन ने खिलानी है। कभी उनको वो मिक्स वेज भी अच्छा लगता है, बेक्ड वेजिटेबल्स अच्छे लगते हैं, वो अवश्य करें। लेकिन जो हम व्हाइट सॉस बनाते हैं ना, तो वो व्हाइट सॉस हम आटे से बनवाए, मैदे के बगैर, वही आदत डालें, और घर का मक्खन इस्तेमाल हो। तो ऐसे ऐसे हम थोड़े थोड़े बदलाव ला सकते हैं कि जो हम चीजें बना, जैसे अभी पानी पूरी जो है, तो पानी पूरी में जो आलू के साथ हम चना भी डालें, और वो पानी में भरपूर धनिया, पुदीना ये भरपूर रहे, तो अपने आप ये सब्जियां उनको मिलती है। कई बार हम जैसे रोटी का रोल करते हैं, तो ऐसी रोटी जो रोल करके देंगे आप, तो उसके रोल के अंदर अच्छी सी चटनी बना के दे सकते हो, मूंगफली की चटनी दे सकते हो, या हरा धनिया, पुदीना, थोड़ा कोकोनट, इसकी चटनी ऐसे बना के रोटी के रोल के अंदर लगा के वो रोल करके भी आप दे सकते हो। और वो चटनी इंटरेस्टिंग करे, उसमें थोड़ी इमली भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। लेकिन सब्जी मतलब हर बच्चे ने हरी सब्जी खानी ही चाहिए। तो हरी सब्जी तो मुश्किल है, तो एक तो मेथी पराठे वगैरह कर सकते हैं, तो इसलिए ये चटनी का इम्पोर्टेंस है। अलग अलग प्रकार की चटनियां, हरा धनिया, पुदीना, और इन दिनों में भरपूर मिलते हैं, उसकी चटनी दे। वो चटनी जैसे इडली बनाते हैं यदि, तो इडली के साथ भी जो चटनी देंगे उसमें भरपूर हरा धनिया वगैरह चाहिए। पुदीना हम
पानी पूरी के पानी में भरपूर पुदीना डाल के दे सकते हैं। तो ये सब चीजें उनको आवश्यक है। और सबसे जरूरी जो है वो प्रोटीन्स, प्रोटीन्स भरपूर चाहिए। तो प्रोटीन्स कैसे मिलते हैं? दालों से। द्विदल जो है राजमा, छोले और बाकी हमारे सब दालें, अंकुरित, फिर दूध, दही, छाछ, फिर मूंगफली, तेल बीज सारे, मूंगफली से भी प्रोटीन्स अच्छे मिलते हैं। मूंगफली है, चना है, भुंजा चना है, बादाम, काजू, पिस्ता, इससे प्रोटीन सबसे मिलते हैं। और अंडा और मछली। तो ये प्रोटीन्स की जरूरत बच्चों को जन्म से लेकर मृत्यु तक सबको है, हर 3 घंटे में। तो सुबह भी चाहिए, इसलिए दूध देना जरूरी है। अब हर बच्चे ना बोर्नविटा चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि बोर्नविटा से अच्छी चीज है कि हम यदि हमारे जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं ना, उसकी पाउडर करें, थोड़ा उसको भून के, और वो पाउडर दूध में डाल के दें। तो कोई उससे न्यूट्रिशन होगा। बोर्नविटा में जितना है उतना, मतलब आई एम डाउटफुल। या तो फिर कभी वो क्या होता है, व्हाई चिल्ड्रन डोंट लाइक दैट, बिकॉज इट डजंट गेट डिसॉल्व। ये जो पाउडर है ना, ये दूध में डिसॉल्व नहीं होती, तो वो मुंह में आता है, इसलिए समटाइम्स चिल्ड्रन डोंट लाइक। So you can make paste. कॉफी चाहिए, ये सब गलत बात है। दूध, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक बहुत बड़ा ग्लास भर के दूध पिला देते हैं, वो भी सही नहीं है। इतना दूध, इतने दूध की जरूरत नहीं है, 150 ml तक बहुत है। और जहां तक हो सके दूध में शक्कर ना डालें। और वो दूध के साथ बिस्किट वगैरह देते हैं, तो इससे अच्छा है कि रात को भिगो दो आप बादाम, काजू। काजू भी बहुत अच्छी चीज है, कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं है, बड़ों के लिए मैं बता रही हूँ। बादाम है, अखरोट है, वो भिगो के रख दो, वो उसके साथ, और खजूर वो उसके साथ दे दो, और एक फ्रूट दे दो। इतना भी लेके वो स्कूल में गए तो भी चलता है। और इनफैक्ट व्हेन देयर आर 2 दिस थिंग, तो एक में तो उन्होंने खेलना चाहिए, पूरा सही भोजन लेना चाहिए। और कई बार अभी अपन देते हैं, if the school is providing whatever it is, लेकिन only सब्जी रोटी, this is again devoid of proteins। तो वो सब्जी रोटी में दाल होना जरूरी है। तो कई बार टिफिन में या ऐसे दाल पतली नहीं ला सकते हैं, तो जो सब्जी हम बनाते हैं वही दाल के साथ बनाया जाए, या उसी में बेसन डाला जाए। या जो हम रोटी बनाते हैं बच्चों के लिए, तो वो आटा ही ऐसा पिसवाएं। आजकल सब रेडीमेड आटा लेते हैं, ये भी एक गलत बात है, क्योंकि रेडीमेड आटा लेते हैं तो उसमें से व्हीट जर्म निकल जाता है, विटामिन ई निकल जाता है। यदि हम खुद पिसवाते हैं तो 10 किलो गेहूं में 1 किलो काला चना डालिए, 1 किलो काला चना। और आर यू अवेयर ऑफ रागी? रागी जिसे नाचनी भी कहते हैं, रागी भी थोड़ा सा उसी में डाले, तो फिर ये जो रोटी बनेगी वो काफी हद तक न्यूट्रिशियस बनेगी। और ये रोटी जब हम गूंथते हैं आटा, तो वो दूध में गूंदे, उसमें थोड़ा दूध पाउडर भी डाल सकते हैं। या वो जब हम दूध में गूंथते हैं, उसी समय उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच ऐसे खाने के चूने का पानी भी डाले। तो दिस व्हाट इज वैल्यू एडिशन, उतना, क्योंकि बच्चा एकदम बहुत ज्यादा नहीं खा सकता है, तो वो एक रोटी न्यूट्रिटिव वैल्यू से परिपूर्ण हो। तो वो दूध में गूंदे, उसी में थोड़ा सा चूने का पानी डाल दे 1 चम्मच, और जो सब्जी बनाते हैं उसमें थोड़ा दाल होना जरूरी है, उसमें मूंगफली डालिए, वॉट एवर द चाइल्ड लाइक्स। इस ढंग से कोई भी, आलू की भी सब्जी है कोई बात नहीं, आलू की दो, भिंडी की है भिंडी की दो, जो भी सब्जी है अवश्य देना है। और यदि वो हरी सब्जी नहीं खाते हैं तो चटनी के रूप में उनको खिलाओ। चटनी, मीठी चटनी भी होती है, उसमें थोड़ा गुड़, इमली डाल के। और हरा धनिया, पुदीना ये अवश्य उनको देना ही है। तो ये प्रोटीन जैसे टिफिन में ये मैंने बता दिया। फिर शाम को भी जब खेल घर आते हैं, तब भी उनको आप ये भरपूर ऐसे मूंगफली भूंजी हुई, उसके साथ थोड़ा गुड़, उसके साथ मुरमुरा, या उसके साथ पॉपकॉर्न, ऐसे कुछ दे सकते हैं। या चिड़वा बना के दे सकते हो, लेकिन ये रेडीमेड फरसान वगैरह ये नहीं देना है। या भेल दे सकते हो। मूंगफली अवश्य खानी चाहिए प्रतिदिन हर व्यक्ति ने, लेकिन मूंगफली भून के छिलके उतार के,
मूंगफली बहुत अच्छी चीज है। शाम को उनके थोड़ा सा काजू वगैरह भी दे सकते हैं, बट इट शुड बी ऑल टुगेदर। थोड़ी देर ये खाया, थोड़ी देर में ऐसे बार बार कंटिन्यूअसली कुछ खा रहे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम को हल्का नाश्ता और रात का भोजन। और रात का भोजन जल्दी होके बच्चों ने जल्दी सोना चाहिए। तो कम से कम 7:30-8 बजे रात को बच्चों का भोजन जरूरी है, और उसमें भी दाल या छोले या राजमा और ये सब जरूरी है। अब आजकल कितनी सारी हरी सब्जियां मिलती है, बथुआ है, तो इनका अपन रायते के रूप में भी बच्चों को खिला सकते हैं। बच्चों को रायता खिलाए। बच्चों ने, हम लोगों ने प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जी खानी है, तो बच्चों ने भी कम से कम 200 ग्राम सब्जी खानी ही है, और उसमें कुछ हरी सब्जी और कुछ दूसरी सब्जी। तो किस ढंग से देते हैं? पराठे के रूप में दीजिए, अलग उसका अचार भी बनाते हैं इन दिनों में ना, जैसे गाजर है, फूल गोभी है, मूली भी डालते हैं उसमें। तो ऐसा जो अचार है वो भी दे सकते हो आप, कम तेल डाल के, और अच्छा चटक मटक अवश्य देना है। तो अलग अलग रेसिपीज बनानी है, लेकिन जब रेसिपीज हम बनाते हैं तो यू हैव टू सर्च कि उसमें प्रोटीन्स है कि नहीं। जैसे मूंग दाल है, उसमें प्रोटीन्स है, बट दे आर इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। When you supplement it with rice, when you supplement it with any cereal, it becomes a good complete protein. So you have to search for that. अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। पोहा बनाते हैं, है ना? तो पोहा ये सीरियल है, तो सीरियल होना ही चाहिए। पोहा के साथ अभी दाल तो नहीं हो सकती, तो हम उसमें मूंगफली डाल सकते हैं। तो पोहा में बहुत सब्जी डाली है, आलू, प्याज, गाजर घिस के, फूल गोभी, मटर, ऐसे सब सब्जियां डाली है। फिर वो तेल में बनाते हैं, तो तेल जो है कच्ची घाड़ी का तेल चाहिए। रिफाइंड तेल कतई कभी भी इस्तेमाल नहीं हो। फिल्टर्ड ऑयल विल बी ओके, हाँ, बट नॉट अ रिफाइंड ऑयल। उसमें बनाना है। फिर बनाने के बाद उसके ऊपर कहीं कहीं कोई एरियाज में ऐसे तर्री भी देते हैं चने की, तो वो कंप्लीट हो गया। लेकिन उसके ऊपर भरपूर हरा धनिया डालना है, और नींबू भी डालना है थोड़ा सा, और उसके ऊपर सूखा नारियल भी डालते हैं, एंड इसके साथ थोड़ा सा दही देना है और एक फ्रूट देना है। दिस इज अ कंप्लीट डिश। तो जब ऐसा खाना बच्चा खाता है, प्रमाण कम हो सकता है लेकिन प्रकार ऐसे ही हो, अमाउंट कैन बी लेस, but when you eat in this form, the whole thing is being utilized by your body. If you are consuming in incomplete form, then you are getting only empty calories and your body is not receiving all the nutrients properly. तो ये proteins, you have to make each dish complete. दलिया बनाते हैं तो दलिया में आप मूंग दाल डालिए, खूब सारी सब्जियां डाल के बनाइए, कुकर में बनाइए, तो वो गल जाती है सब्जियां, पता नहीं लगता बच्चों के लिए। तो इस ढंग से अलग अलग आप बनाते जाइए, बट यू मस्ट नो कि व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन इज प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज कैल्शियम। तो कैल्शियम यानी दूध दही छाछ देना है। अब क्या होता है कि कई बार दूध बच्चे आजकल पीते नहीं, या जो है फिर एवरी टाइम दे वांट समथिंग, कुछ कॉफी डालो, चाय डालो, बोर्नविटा डालो। तो इससे अच्छा है कि दूध दही और छाछ के रूप में दीजिए। अब सर्दी में तो हम दही और छाछ नहीं देते हैं, तो इसलिए गर्म दूध दीजिए, और सुबह के समय दही छाछ दे सकते हैं, लेकिन वो घर का बनाया ताजा और गाय का दूध हो तो सबसे अच्छा है। बच्चों के लिए गाय का घी बहुत अच्छा है, वो अवश्य देना है। जब हम रोटी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, या दाल खिलाते हैं, दाल में थोड़ा घी डालिए, या जो भी है, तो घी देना बहुत 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 जरूरी है। हम लोगों ने भी घी खाना है, कम से कम 1 चम्मच, बड़ों ने भी, लेकिन बच्चों को 2 चम्मच घी। घी इज लाइक इट इज वेरी गुड फॉर ब्रेन, अवश्य देना है। लेकिन गाय का घी बहुत अच्छा है। तो उनको फ्रूट सभी देना है, केला भी दे सकते हैं। और जब वो एक तो पानी, हाँ, पानी भी कम पीते हैं। कई बार ऐसे होता है स्कूल में, जो मैं देखती हूँ, लड़कियां हैं, ये है, क्योंकि पानी पीने से दे हैव टू विजिट द टॉयलेट, तो इसलिए पानी कम पीते हैं। तो पानी पीना भी बहुत जरूरी है। प्रतिदिन 7-8 गिलास पानी पीना ही है। और स्पेशली जो बच्चे स्पोर्ट्समैन हैं, खेल रहे हैं, फुटबॉल है, ये है, वो है,
So that time when they are taking water, it should not be a plain water. वो उसमें नींबू डालिए, नमक डालिए और शहद डालिए. ऐसा ही पानी स्पोर्ट्समैन ने जो बीच बीच में पानी पीते हैं वो पीना चाहिए. और स्पोर्ट्समैन बीच में केला भी खा सकते हैं और एनर्जी के लिए. और खजूर भी खा सकते हैं. ये चीजों का इस्तेमाल करें, ना तो रेडीमेड खाद्य पदार्थों का. आलू अवश्य खाए, आलू कोई खराब चीज नहीं है छिलके के साथ, लेकिन आलू के चिप्स बहुत खराब है. जो भी हम तल के खाते हैं ना, तो वो उसका जो तेल में से जो धुआं निकलता है, तेल में जो अच्छे पौष्टिक तत्व है वो बदल जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, एंड देन इट इज वेरी बैड. उसे हम हमारी भाषा में बोलते हैं कि ट्रांस फैटी एसिड्स. उसमें ट्रांस फैटी नमस्ते, एसिड्स. हैप्पी न्यू ईयर. मैं अभी मैं अभी वेबिनार में हूँ. Aditi ma'am, your mic is not on mute, Aditi ma'am. Can I continue? Sure, ma'am. Yes. Sure, ma'am. I have muted. Yeah. तो ये पानी भी पीना बहुत जरूरी है बच्चों ने. और जहां तक हो सके रेडीमेड स्टफ इज टू बी अवॉइडेड. ओनली वंस इन चॉकलेट्स, कैडबरी, और हर चीज में कोको चाहिए. सब केक्स भी वही है. ऑल दीज आर नॉट न्यूट्रिशियस. बट हम जो भोजन लेते हैं, हम आहार लेते हैं, हम आहार किस लिए लेते हैं? हमारी बढ़ोतरी के लिए, बच्चों की बढ़ोतरी के लिए, और हम लोगों के वेयर एंड टेयर के लिए. हमारी तो बढ़ोतरी नहीं है. देन व्हाई वी टेक फूड? फॉर ग्रोथ हो गया, फॉर एनर्जी, है ना, ऊर्जा मिलना है, उसी से एनर्जी मिलती है. देन वी टेक फूड फॉर इम्यून सिस्टम. भोजन से ही हमारे शरीर में प्रतिकार शक्ति मिलती है. यदि हमारा भोजन सही है तो ये कोरोना वायरस हमें कुछ नहीं कर सकता. और इसके लिए सही भोजन कैसा है? तो सभी विटामिन चाहिए. तो रोग प्रतिकार शक्ति भी हमारे आहार से ही प्राप्त होती है. और हम आहार लेते हैं, हमारे आनंद भी मिलना चाहिए. खान पान से तो आनंद मिलना ही चाहिए ना. तो ये आनंद अवश्य हो. दिवाली, दशहरा जब है, उसमें हम जो चीजें खाते हैं वो आनंद के लिए रहते हैं, वो न्यूट्रिशन के लिए नहीं रहती है. तो ये केवल त्योहारों में निश्चित रूप से आप खा सकते हो, लेकिन आजकल इसका अतिरेक हो गया है. बहुत ज्यादा खाया जाता है, बहुत ज्यादा सोशल लाइफ हो गया है. कंटिन्यूअस हमारे जो बर्थडे वगैरह में यही दिया जाता है. वी हैव टू चेंज द सिस्टम ऑफ सेलिब्रेटिंग बर्थडेज, इजंट इट? वी कैन गिव सम, जो रिटर्न गिफ्ट्स रहते हैं वो अलग होना चाहिए. केक काटते हैं, ये दिया बुझा के करते हैं, तो ये भी हमें अच्छा नहीं लगता. हम दिया जलाएं, हम ऐसे बने, हमारा खुद प्रकाश विश्व भर में होए, ये हमारी तमन्ना रहती है. तो ये जो चीजें हम खाते हैं त्योहारों में, तो वो त्योहार का प्रमाण कम हो, या सोशलाइजिंग कम हो. सॉफ्ट ड्रिंक्स है, चॉकलेट्स है, केक्स, पेस्ट्रीज, इससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता. 100% मैं कह सकती हूँ. सॉफ्ट ड्रिंक से भी नहीं मिलता, लेकिन हमारे घर के जो ड्रिंक्स हम यदि बनाते हैं होममेड, उससे निश्चित रूप से मिलता है. बट वंस इन ए वाइल you can have it and enjoy, but it is not at all good. और ये जो बड़े होके आजकल हार्ट अटैक का प्रमाण बहुत बढ़ गया है. तो मनुष्य को जब हार्ट अटैक होता है ना, उसकी तैयारी शरीर में, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 5. जो हमारी खून की धमनियां हैं, उसके अंदर जो लेयर्स जमने शुरू होते हैं, इट कैन बी फ्रॉम द एज ऑफ 5. So you have to be very, very, very careful, and all the children must know about it. How the food can make you good, it can make you bad also. वो ही अच्छा खाना हो तो आप कितने अच्छी लाइफ करेंगे. बार बार बीमार होना, बार बार ये होना, ये सही नहीं है. आजकल लड़कों के दांत खराब, आंखें खराब, स्किन बहुत रफ, दांत खराब, नाखून खराब, नाखून ठीक से काटते नहीं हैं. तो ये सभी बातों पर बच्चों ने खुद ध्यान देना चाहिए. दे मस्ट रियलाइज कि ये चीजों से हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया जाते हैं. अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, अब ये तो कोरोना वायरस है. वायरस को तो
कोई एंटीबायोटिक दवाई वगैरह कुछ खत्म नहीं कर सकती, वो अपना टाइम लेता है। लेकिन जो बैक्टीरिया है जिससे भी बीमारियां होती हैं, बैक्टीरिया अच्छे भी है खराब भी है। देर आर फ्रेंडली बैक्टीरिया, दे आर वेरी वेरी डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ऐसे भी है। कई बार वो बैक्टीरिया अंदर जाते हैं, फिर डायरिया है, उल्टियां है, कोई बीमारी है, कोई बुखार है, ऐसे भी होते हैं। और अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे अभी ये दही छाछ ये जो है ना, इसमें अच्छे बैक्टीरिया है, दे आर वेरी वेरी बेनिफिशियल, वो लेना ही चाहिए। तो ये पूरा हमारा जो इंटेस्टिनल कैनाल है, मुंह से लेकर नीचे तक अंदर का जो कैनाल है ना, उसके अंदर ये बैक्टीरिया रहते फ्रेंडली, और ये फ्रेंडली बैक्टीरिया जो भी दूसरे डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया एंटर होते हैं उनको खत्म करते हैं। हाँ, और ये बैक्टीरिया यदि हमारे पूरे इंटेस्टिनल लाइनिंग में नहीं है तो वहां से वायरस वगैरह अंदर जाता है ब्लड सर्कुलेशन में, वहां से बाकी बैक्टीरिया भी अंदर चले जाते हैं। तो इसलिए ये फ्रेंडली बैक्टीरिया डेवलप होना ही है, और ये फ्रेंडली बैक्टीरिया डेवलप होंगे जैसे दूध लेंगे, दही छाछ लेंगे और भरपूर सब्जी फल खाएंगे। जिन सब्जियों में रेशा तंतुमय पदार्थ है वो सब्जियां हमारे लिए बहुत लाभदायी है। जो फल हम जूस नहीं लेना, छोटे बच्चों को भी जूस वीस मत दो, बहुत ही इन्फेंट को ही देना है 1 साल तक क्यों, फिर धीरे धीरे उनको भी छिलके के साथ बच्चों को देना, मतलब 2 साल तक आप बच्चों को दे सकते हैं जूस, लेकिन बाद में जूस नहीं देना। पूरा का पूरा फल खाना चाहिए छिलके के साथ। अब संतरा तो छिलके के साथ नहीं, लेकिन अंदर का तो पूरा सब खाना ही है। केला भी छिलके के साथ नहीं, लेकिन वैसे तो जहां तक हो सके एप्पल है, अमरूद है, ये सब छिलकों के साथ, बेर है, ये खाना चाहिए, क्योंकि ये जो छिलके हैं, फाइबर रफेज है, रेशा तंतु में पदार्थ, यही पूरा इंटेस्टिनल लाइनिंग को सेफ रखते हैं, और वहीं वो अच्छे बैक्टीरिया को की बढ़ोतरी होती है। और यदि वो नहीं है तो जो दुष्ट बैक्टीरिया है, दुष्ट वायरस है, वो वहां से ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होते हैं। तो एक तो ये सब चीजें चाहिए, दूसरा है विटामिन चाहिए आहार में, तो भरपूर विटामिन सी चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना पेशेंट्स को विटामिन सी की गोलियां दी जा रही है, तो गोली बड़ी बड़ी भी होती है, हाँ, तो गुटकना भी मुश्किल है। और कई बार क्या होता है, ये जो भी हम गोलियां लेते हैं ना, बी विटामिन, सी विटामिन, इनका ना एब्सॉर्प्शन इज ओनली 15 to 20%, टोटल एब्सॉर्प्शन नहीं होता है। लेकिन वही हम यदि नींबू खाएंगे, फल खाएंगे, तो उससे विटामिन सी पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो इसलिए ताजा खाना बहुत जरूरी है, गोलियां और इससे लेने से बजाय ये। तो भरपूर नींबू खाना चाहिए, गर्म पानी में डाल के लो, सर्दी है ना तो गर्म पानी में डाल के लो, उसमें थोड़ा शहद भी डाल के लो। प्रतिदिन 1, 2, 3 कितने भी नींबू आप खा सकते हैं, नींबू, और नींबू के रूप में आंवला खा सकते हैं, यदि पसंद है तो आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा, रोज 1 आंवला खाना ही चाहिए। भरपूर विटामिन, तो ये जो विटामिन सी है ना, ये वायरस को नष्ट करता है, बाकी कोई विटामिन, कोई दवाई वायरस को नहीं नष्ट कर सकती। तो ये विटामिन सी अलॉन्ग विथ विटामिन ई, तो ई रहता है स्प्राउट्स में, अंकुरित में है, तेल बीजों, मूंगफली में है, बादाम में है, काजू में है, हरी सब्जी में है। एक्चुअली ये जो हरी सब्जी है ना, उसमें सभी विटामिन है, जितने भी है 14, 15 सब। तो इसलिए हम ज्यादा बार बार बोलते हैं कि हरी सब्जी खानी चाहिए, मतलब फिर बाकी कोई गोली बिली खाने की कोई झंझट ही ना हो। रोज 2 नींबू खाएं, रोज 2 गाजर खाएं, रोज 200 ग्राम सब्जी खाएं, रोज 1 मुट्ठी भुनी हुई मूंगफली, मुरमुरा और गुड़ खाएं, अच्छा वाला गुड़ अवश्य खाएं, और रोज अंकुरित कम से कम 2 या 3 चम्मच ऐसे कच्चा खा जाए, उसका भी सलाद बना के। और यू हैव टू डेवलप टेस्ट फॉर इट। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन, तो ये टेस्ट डेवलप करना है। हमारे जो जीभ होती है ना, जिह्वा है, टंग है, उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स रहते हैं, तो वो आप केवल मीठा खाओगे तो वो टेस्ट बर्ड्स नष्ट हो जाएंगे, आप केवल तला हुआ खाएंगे वो टेस्ट बर्ड नष्ट हो जाएंगे, आप केवल मीठा खाएंगे, स्पेशली ये चॉकलेट्स वगैरह से क्या होता है, पूरा टेस्ट बर्ड्स आप देन दे डोंट हैव टेस्ट फॉर
अदर फूड्स, अदर जो रस है, मीठा रस है, तीखा रस है, कड़वा तो बच्चे नहीं खाएंगे, लेकिन हमारे लिवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रोज कड़वा भी कुछ खाना चाहिए। तो अभी कड़वा कैसा खाएंगे? तो आपकी मम्मी को बताएं कि जैसे हम दाल बनाते हैं तो उसमें मेथी दाने का प्रयोग प्रतिदिन पकाते समय 1-2 चम्मच मेथी दाना डालें, वो सबके लिए लाभदायी है। तो ये जो कड़वी चीज है ये बहुत अच्छी है, लेकिन कड़वा यानी लौकी का कड़वापन नहीं या खीरे का कड़वापन नहीं, वो नहीं, वो खराब है। वो बहुत ही खराब है। तो ऐसे मेथी दाना यदि प्रतिदिन घरों में खाया जाए तो उससे बहुत लाभ होता है। और आंवला रोज खाना चाहिए। आंवला कैसे सिट्ठा होता है ना, तो ऐसे जो भी सिट्ठी चीजें हैं, कभी बेर खाए, जामुन खाए, ये सिट्ठी चीज है। कवट खाए, अब कवट तो नहीं मिलता है, लेकिन जो भी सिट्ठी चीज है, और आंवला प्रतिदिन खाए जितना भी है, 1-2 हर व्यक्ति ने खाना चाहिए। कभी उसका मुरब्बा बना के, कभी उसका घिस के, सुखा के, कभी उसको अचार बना के, ऐसे किसी भी रूप में आंवला रोज 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 खाया जाए। और विटामिन ई के लिए अंकुरित चाहिए, विटामिन ई के लिए सब्जी चाहिए, विटामिन ई के ताजा तेल चाहिए, रिफाइंड तेल नहीं चाहिए, उससे भी विटामिन ई मिलता है। और विटामिन ई के लिए जैसे बादाम है, मूंगफली है, काजू में है, अखरोट में है, चिलगोजे में है, ये सब प्रतिदिन कुछ किसी ना किसी रूप में यू हैव टू प्लान योर डाइट। ऑल द मदर्स दे मस्ट प्लान योर डाइट, वीकली मेनू, और उस हिसाब से दें। और फिर जब बच्चे, मैं ऐसा बताती हूँ कि 14 दिन बच्चों ने हमारा डाइट लेना चाहिए, और ऑन 15th डे इफ दे इंसिस्ट whatever they want on one day, right from morning till evening, then they will be happy, but otherwise they have to consume. but इसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि पेरेंट्स ओनली आर रिस्पॉन्सिबल। they only want ready-made stuff, they only want to visit to hotels very frequently, they want all this supermarket stuff. So they have to first try to change themselves. मदर्स, उनको घर में बनाने का आलस आता है, क्योंकि सब मिलता है, कौन घर में बनाएगा? बट होम फूड, द फूड मेड बाय मदर इज द बेस्ट फूड, कोई सवाल ही नहीं। आई नो देर आर ऑल वर्किंग वीमेन, so that's why they should plan their menu for the day, for at least for tomorrow, at least for day after tomorrow, and accordingly be ready. and घर में जितने भी लोग हैं सब ने इसमें हाथ बढ़ाना है, सब लोगों ने मदद करनी है, तो ऐसा हम ये सब कर सकते हैं। अदरवाइज विल गो ओनली फॉर रेडीमेड फूड, कि पानी डालो, थोड़ा गर्म करो, हो गया। उसमें क्या पौष्टिकता रहेगी? मतलब बहुत कम पौष्टिकता रहेगी। पौष्टिकता किसमें? ताजे खाद्य पदार्थों में। ताजा ही अन्न खाना चाहिए, आज का बनाया हुआ आज ही खाना है। फ्रिज में 7 दिन का बना के रख के खाना अच्छी बात नहीं है। और फॉर दिस you have to make lot of efforts, it is not very easy, I know, but हमारा स्वास्थ्य इतना मूल्यवान है, और मूल्यवान चीज प्राप्त होने के लिए हमें कष्ट तो करने ही पड़ेंगे। तो जितनी भी हमारी एक तो ओल्ड रेसिपीज थी, ट्रेडिशनल रेसिपीज थी, उसको ही आप रेजुवेनेट करिए। जो भी खाद्य पदार्थ, या टीवी पे भी हम कितनी सारी रेसिपीज देखते हैं, तो जहाँ मैदा है अवॉइड दैट, जहाँ बहुत ज्यादा क्रीम है अवॉइड दैट, यू चेंज इट। क्रीम की जगह आप घर का मक्खन डालिए, घर में मक्खन या जो व्हाइट बटर रहता है वो है। मैदे की जगह आटे का इस्तेमाल करिए, या कभी रागी इस्तेमाल करिए। और ये मिलेट्स जो है, अभी दिखाया था जवारी वगैरह, जवारी बाजरा, ये मिलेट्स है। मिलेट्स आर नॉट रिफाइंड, सो इट इज वेरी गुड टू यूज देम। वेराज चावल बहुत रिफाइंड होता है, बाकी तो मिलेट्स में बहुत सारे मिनरल्स है। कोदो, कुटकी, सावा वगैरह है ना, ये सब मिलेट्स है। बाजरा ये मिलेट है, रागी ये मिलेट है। तो मिलेट्स आर द बेस्ट, बिकॉज एक तो उनमें ज्यादा रासायनिक खाद भी नहीं इस्तेमाल होते हैं, रासायनिक उसको ये भी नहीं किया जाता है, फवारनी भी नहीं होती है। तो मिलेट्स का उपयोग प्रतिदिन किसी ना,
रागी का ऐसे खीर भी अच्छी बनती है रागी के आटे की।